નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ યુ ઓલ વેરી ફાઇન. આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા લેક્ચરમાં ધોરણ 9ના હિન્દીના પાઠ્યપુસ્તકમાં કે વ્યાકરણનો એક ટોપિક મુહાવરા છે એ લીધેલો હતો. હવે આજે બીજા લેક્ચરમાં વ્યાકરણનો એક બીજો ટોપિક હું લેવાની છું, પણ એ પહેલાં તમને એક સરસ મજાની વાત કહેવા માગું છું કે એક વખત એક ગામ હતું. એ ગામમાં એક ભાઈ છે, એણે એક વાંસનું ઝાડ હતું. વાંસ મીન્સ બાંબુ, જેને આપણે કહીએ છીએ, જેનાથી વાંસળી બનાવવામાં આવે છે. તો એ વાંસનું ઝાડ હતું, એમાંથી એ વાંસની એક લાકડી કાપીને એક સુથારીને ત્યાં ગયો અને કીધું કે આને તું છોલીને એમાં કાણા કરીને મને એક વાંસળી બનાવી આપ. એટલે એ ભાઈએ છે એને એક સરસ મજાની વાંસળી બનાવી દીધી. તો ઓલા જે ભાઈ કાપીને લાવ્યો હતો લાકડી, એ ભાઈએ વાંસળી લઈને વગાડવાનું શરૂ કર્યું. તો બીજા કોઈએ એ વાંસળીના સૂર સાંભળ્યા અને એને પણ મન થઈ ગયું કે હું પણ લાવ ને, ચાલ ને એક બીજી હું પણ વાંસળી બનાવું. એટલે એ ભાઈ ગયો વાંસના ઝાડ પાસે અને એ બીજી એક લાકડી કાપીને એ સુથારી પાસે લઈ આવ્યો અને કીધું કે પહેલાંને જેવી બનાવી દીધી એવી જ વાંસળી તું મને બનાવી આપ. એટલે એ ભાઈ એને પણ વાંસળી બનાવી દીધી એ સુથારીએ. ત્યારબાદ એ ભાઈ પણ વાંસળી વગાડવા લાગ્યો. એમ કરતાં કરતાં ગામમાં ઘણા બધા લોકો વાંસના ઝાડમાં લાકડી કાપીને લાવે, સુથારીને આપે, સુથારી એની વાંસળી બનાવી દે અને લોકો છે વાંસળી વગાડે. હવે બધાના સૂર સારા હોય એવું જરૂરી તો નથી. કોઈ સારા સૂરથી વગાડે ને કોઈ એકદમ ધ્વનિ પ્રદૂષણ, નોઇઝ પોલ્યુશન ફેલાવા લાગ્યા. એટલે સુથારીને છે એ ગુસ્સો આવ્યો કે દિવસ રાત આખા ગામમાં આટલો ઘોંઘાટ વાંસળીનો થયા કરે છે. એટલે સુથારીએ શું કર્યું, એક દિવસ કુહાડી લઈને ગયો અને એ વાંસના ઝાડને ધડમૂળમાંથી કાપી નાખ્યું અને ફેંકી દીધું. ત્યારે એ માણસ છે એ ત્યાં એક વાક્ય સરસ મજાનું કથન બોલ્યો કે ન રહેગા બાંસ ન બજેગી બાંસુરી. મતલબ કે વાંસનું ઝાડ રહેશે જ નહીં તો વાંસળી ક્યાંથી વાગશે? હાલને આ સમસ્યાને ધડમૂળમાંથી હું કાઢી નાખું. જો વાંસનું ઝાડ આમ નામ રહેશે તો લોકો લાકડી કાપી કાપીને મારી પાસે લાવશે, હું એને વાંસળી બનાવી દઈશ અને લોકો વગાડ્યા કરશે અને આખા ગામમાં ધ્વનિ પ્રદૂષણ કરશે. એટલા માટે એ ભાઈએ છે વાંસને ધડમૂળમાંથી કાઢી નાખ્યું, કાપી નાખ્યું. એનો મતલબ એમ કે જે કંઈ સમસ્યા હતી, સમસ્યા શું હતી? વાંસળી વાગવાની. તો એ સમસ્યાને જડમૂળમાંથી એણે કાઢી નાખી, એટલે કે વાંસ કાપી નાખ્યો. ત્યારે એક કથન એ બોલ્યો, જે હું ફરીથી રિપીટ કરું છું. એ ભાઈ એટલું બોલ્યો કે ન રહેગા બાંસ ન બચેગી બાંસુરી. તો આટલું કથન છે એને કહેવાય છે કહાવત. ગુજરાતીમાં આપણે એને કહેવતો. ગુજરાતીમાં ઘણી બધી કહેવતો છે, જેમ કે ભેંસ આગળ ભાગવત વાંચવી. તો સામાન્ય એનો અર્થ જોઈએ તો ભેંસ સામે જઈને ભાગવત ગીતા વાંચવી, પણ આપણે એવો અર્થ અહીં લેવાનો નથી. એનો મતલબ એમ કે જે માણસ કંઈ સમજતો જ નથી, આપણી વાતની એની અસર, કોઈ પણ અસર એની ઉપર થતી જ નથી, એને એ વાત કહેવાનો કોઈ મિનિંગ છે જ નહીં. મતલબ વ્યર્થ પ્રયાસ કે વ્યર્થ પ્રયત્ન કરવો એને કહેવાય. હવે સેમ આ જ કહાવતને આપણે હિન્દીમાં लेवी हो तो गधे को गणित सिखाने, यानी कि जो गधा है उसको कितनी भी कोई भी तरीके से गणित सिखाओ उसको वो गणित आएगा ही नहीं. यानी कि उसे हम कहेंगे व्यर्थ प्रयत्न करना, व्यर्थ प्रयास करना. तो हिंदी भाषा हो, गुजराती हो या कोई भी भाषा हो, उसमें कहावतों का बहुत ही अमूल्य योगदान है. यानी कि कहावत है वो चार चांद लगा देते हैं. तो आज हम दूसरा टॉपिक यानी कि धोरण कक्षा 9 के दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो टॉपिक है वह है व्याकरण का कहावतें. तो कहावत का अर्थ क्या होगा, क्यों कहावत हम प्रयुक्त करते हैं, कहावत कहाँ से आती है, उसे कैसे बनाया जाता है, उसके कहावत लिखते या बोलते समय कौन सी बाबतों का, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए. तो वो कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं यहाँ रखती हूँ. तो सबसे पहले हमने देखा कि कोई एक घटना है, उसके ऊपर से कोई व्यक्ति या कोई लोग उसके बारे में एक कथन, एक उक्ति या एक वाक्य प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग करते हैं. वही घटना दोबारा, यानी कि वही वाक्य, ऐसी ही कोई घटना घटित होती है उसके ऊपर वही वाक्य दोबारा बोला जाता है. इस तरह यह कथन बार बार बोले जाने से, लोगों में प्रचलित होने से उस कथन का व्यापक होना एक कहावत कहा जाता है. तो सबसे पहले कहावत का अर्थ है, कहावत यानी एक ऐसा कथन. कथन किसे कहते हैं? जो लोग बोलते हैं उसे हम कथन कहते हैं. कहा हुआ वाक्य यानी कथन. तो कोई एक ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो उसे लोकोक्ति या कहावत हम कहते हैं. यानी कि एक कथन, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसी कही हुई बात या उक्ति जो
लोगों में अनुभव के द्वारा बार बार एक ही कथन प्रयुक्त होता है, उसी कथन पर आधारित कोई घटना ऐसी होती है और उसके लिए हम ऐसा कथन दोबारा प्रयोग करते हैं तो उसे लोकोक्ति या कहावत कहा जाता है। कहावत का अर्थ हमने देख लिया कि कथन को लोक अनुभव द्वारा प्रचलित करना, उसके आधार पर उसका प्रयुक्त होना, उसे ही हम कहावत या लोकोक्ति कहते हैं। तो लोगों में प्रचलित उक्ति एक ऐसी उक्ति जो एक इंसान से दूसरे इंसान के पास वह उक्ति जाती है, वह दूसरा दो और लोगों को बताता है, वो दो और लोग असंख्य लोगों को बताते रहते हैं। इस प्रकार एक ही कथन एक व्यक्ति के पास से जाकर एक के बाद एक ऐसे समग्र लोगों में वो प्रचलित हो जाता है। वह कथन, वो उक्ति, उसे हम लोकोक्ति भी कह सकते हैं। लोगों में प्रचलित उक्ति एक ऐसी उक्ति, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम कई बार सुनते रहते हैं यह कहवत, यह कहावत कि किसी भी समस्या का जड़ मूल से उसे निकाल देना, उसे हम कह सकते हैं कि यह एक कहावत है, लोगों में प्रचलित यह एक उक्ति है। तो लोक प्लस उक्ति, इस संधि को अगर जोड़ दिया जाए तो लोकोक्ति बन जाती है। लोकोक्ति का मतलब है लोगों में प्रचलित हुई कोई उक्ति, लोगों में प्रचलित हुआ कोई भी कथन, उसे हम कहावत या लोकोक्ति कह सकते हैं। अब कहावत का अर्थ हमने देख लिया। कहावत का दूसरा नाम है लोकोक्ति, यानी लोकों में प्रचलित एक उक्ति। ये दोनों बातें हमने जान ली। इसके बाद कहावत लिखते समय या कहावत बोलते समय कुछ आवश्यक बातें हमें ध्यान में लेनी चाहिए, और वह आवश्यक बातें कुछ इस प्रकार है। पहली है कि किसी कही हुई बात का समर्थन करने के लिए कहावत का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कहावत ऐसे ही कहीं भी हम बोल नहीं सकते। कहावत ऐसी ही जगह पर हम बोल सकते हैं जहां उसके मुताबिक कोई ऐसी घटना, उससे रिलेटेड कोई ऐसी घटना घटी हो, उसी समय हम उसका समर्थन, उसका साथ देने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए हम ऐसी कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी ताज़ा ही देखा है कि एक ऐसी कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, और इसका हम अर्थ देखें तो ऐसा होता है कि घर में जो वस्तुएं हैं या अपने पास जो इजीली अवेलेबल है, जो आसानी से जो चीज़ें मिल जाती हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं करते, हम उसकी और ध्यान नहीं देते, उसकी कदर नहीं करते, और हम बाहर की चीज़ें हमें अच्छी लगती है। जैसे कि हमारे पीएम मोदी ने कहा कि लोकल को वोकल और फिर ग्लोबल बनाना, कि भाई स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का त्याग करो। लेकिन हमें तो घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है, हमें अपने पास जो अवेलेबल है वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ब्रांड के पीछे हम भागते रहते हैं। तो यहाँ पे वो कहावत एकदम योग्य है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, किसी को भी आसानी से मिली हुई बाबत, आसानी से मिली हुई कोई भी चीज़ वस्तु अच्छी नहीं लगती, जो मुश्किल से मिलता है वह सबको अच्छा लगता है। यह हुई पहली आवश्यकता कि कहावत एक ऐसी बात है जो कहीं भी कोई ऐसी घटना घटी हो या कही हुई कोई बात हो, उसका समर्थन करने के लिए हम कहावत का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अंत भले का भला, यानी कि उसका हम किसी बात के साथ उसका प्रयोग करें तो उसने आखिर तक पढ़ाई में आखिर तक पूरा ध्यान दिया, पूरी मेहनत की, और अंत में वह अच्छे नंबर से पास हुआ, तो उसके लिए हम इस कहावत के द्वारा उस बात का समर्थन कर सकते हैं कि अंत भले का भला, यानी कि अंत भला तो सब भला, यानी कि अंत तक उसने अच्छा ही काम किया, अंत तक उसने मेहनत ही की और उसका फल उसे अवश्य प्राप्त भी हुआ। दूसरी बात यह है जो हमें ध्यान में लेनी चाहिए कहावत में, तो वो है कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से होता है। ऐसे ही कहीं से कहावत हम लिख नहीं सकते, ऐसे ही मन में आया जो कुछ भी वह हम बोल नहीं सकते। जो कुछ भी हम बोलते हैं, यानी कि कहावत एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे ही कहीं से नहीं आ गई, कहावत किसी न किसी घटना से उत्पन्न हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी एक स्टोरी कही थी कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो ये घटना क्या थी, तो कि एक बांसुरी थी
लोग एक के बाद एक लकड़ी लेके आते हैं, बांसुरी एक के बाद एक बनवाते रहते हैं और पूरे गांव में सब लोग वह बांसुरी की आवाज़ एकदम गूंजने लगती है, उससे ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। उस घटना की समाप्ति के लिए, यानी कि उस परेशानी को दूर करने के लिए वह आदमी उस बांस के पूरे पेड़ को जड़ मूल से काट डालता है। तो यह कहावत है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस छोटे से वाक्य, इस छोटी सी कहावत का पूरी घटना के साथ कुछ ना कुछ संबंध है। तो घटना का, कहावत का किसी न किसी घटना से कोई न कोई संबंध होता है। कोई भी घटना ऐसी घटती है, उस घटना के आधार पर कोई भी लोग उसके मुताबिक कोई भी कथन बोल देते हैं। वह कथन जब दोबारा ऐसी ही कोई घटना घटे और उसके ऊपर वह कथन फिर से बोला जाए, बाद में एक के बाद यह एक कथन वायरल हो जाता है, मतलब उस कथन को ही हम कहावत, लोकोक्ति, लोकों में प्रचलित हो जाता है वह कथन, इसीलिए उसको लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। तीसरी बात है जो हमें ध्यान में लेनी चाहिए, वह है लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लेते हैं। अब देखिए कि कहावत का किसी घटना के साथ कोई ना कोई संबंध है, फिर उस घटना से संबंधित जो कथन होता है, लोग एक के बाद एक उस कथन को गढ़ लेते हैं, रिपीट करते रहते हैं। गढ़ लेना यानी कि बार बार ऐसी ही घटना पर वही वाक्य बार बार बोलना, वही कथन बार बार बोलना। यह भी एक कहावत का मुख्य पॉइंट है कि लोग एक कथन को गढ़ लेते हैं, वह कहावत का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद चौथी जो आवश्यक बात है वह यह है कि जब वैसा ही प्रसंग, यानी कि एक कहावत, एक कथन है घटना पर आधारित होती है, उस कथन को लोग गढ़ लेते हैं, और जब कभी भी वैसा ही प्रसंग दोबारा होता है, वैसी ही घटना दोबारा घटती है, तो लोग उस पंक्ति को उस घटना के बाद दोहराते हैं। एक घटना के ऊपर से कथन उत्पन्न होता है या कथन कोई बोलता है, उसी कथन को ऐसी ही दूसरी घटना जब घटती है तब दोहराते हैं, एक के बाद एक। यह दोहराने की बात जो होती है, कथन को बार बार दोहराना ही कहावत कहा जाता है। जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह एक कहावत है कि इसका अर्थ है कि कोई कार्य को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करता है, यानी कि कोई ऐसा इंसान है वो बोलता है कि मुझे तो अच्छा नाचना आता है, मैं ऐसा नाचता हूँ, ऐसा बहुत तारीफ़ें करता है, खुद की तारीफ़ें कि मैं सुंदर ढंग से कोई कार्य पेश कर सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ। और जब उसी समय उसे मौका दिया जाए कि भाई तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि तुझे नाचना आता है, ऐसा वैसा, अब नाच के दिखा, तो तब वह आदमी बहाने बनाता है कि आपका आंगन टेढ़ा मेढ़ा है, मुझे इतनी जगह काफ़ी नहीं है नाचने के लिए, कोई भी बहाना बनाता है। तो उस घटना, उस प्रसंग या उस इंसान के लिए हम यह कहावत प्रयुक्त कर सकते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि नाचना नहीं आता और गलती किसकी निकालता है, तो कि आंगन की, आपका आंगन टेढ़ा मेढ़ा है, मैं यहाँ नाच नहीं सकता। तो इस कहावत का और दूसरी घटना के ऊपर भी हम इस कहावत का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर कहता है कि मैं संगीत का जानकार हूँ, मुझे संगीत अच्छा आता है, मुझे अच्छी तरीके से सब कुछ गाना बजाना आता है, और उसे भी मौका दिया जाए तो वह कहता है कि मैं आज नहीं गा पाऊँगा, आज मेरा गला खराब है, आज मेरी तबीयत खराब है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, कुछ भी बहाना बनाता है। तो उसके लिए भी यही कहावत हम प्रयोग कर सकते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि एक कथन है, एक घटना के ऊपर से एक कथन उत्पन्न हुआ, वही कथन दूसरी ऐसी ही घटना पर दोहराया जाता है, यही पंक्ति दूसरी बार दोहराई जाती है, तो यह दोहराने वाली पंक्ति या कथन को हम कहावत कह सकते हैं। पांचवी बाबत है, पांचवी एक ऐसी बात है आवश्यक कि कहावत मानव अनुभव की सुंदर अभिव्यक्ति है। कहावत एक ऐसी चीज़ है जो भाषा में ऐसे ही उत्पन्न नहीं होती, वह मानव लोगों के अनुभव से वह उत्पन्न होने वाली एक बात है। कोई भी कहावत कहीं से भी नहीं आती, कहावत का संबंध किसी न किसी आदमी या किसी न किसी मानव या मनुष्य से है। कोई भी मनुष्य किसी घटना के ऊपर से कथन बोल डालता है, वह कथन लोग गढ़ लेते हैं, दूसरी बार ऐसी ही घटना कोई घटित होती है, वहाँ वह कथन दोहराया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कथन का मानव की अनुभूति के सुंदर अभिव्यक्ति है। मनुष्य जो अनुभव करता है, उस अनुभव, पूरे अनुभव को एक छोटे से वाक्य में प्रयुक्त करने की बात को, सुंदर अभिव्यक्ति को ही हम कहावत कहते हैं।
छठी आवश्यक बात है कि यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में मिलती है। कहावत है वह, जैसे कि बाप को अपने बेटे को, बाप से अपने बेटे को जायदाद मिलती है, उसी तरह उसके बेटे को उसकी जायदाद मिलती है। उत्तराधिकार के वारसागत जेने આપણે ગુજરાતીમાં કહી શકીએ। तो कहावत एक ऐसी बाबत है जो उत्तराधिकारी के रूप में हमें मिलती है हमारे पूर्वजों से, और हमारे जरिए हमारे बाद की पीढ़ी, हमारे आने वाली पीढ़ी को हमसे यह कहावतें मिलती रहेंगी, यानी कि यह एक प्रोसेस है वो चलती रहेगी। तो कहावत है अभी उत्पन्न नहीं हुई, कहावत पूर्वजों द्वारा मिलती है। बहुत सालों पहले किसी ने कोई भी घटना के ऊपर कथन कहा होगा, वह कथन धीरे धीरे लोगों ने गढ़ लिया और इस तरह वह कथन प्रचलित लोगों में हो गया, और यह कथन आने वाली पीढ़ियों को एक के बाद एक मिलता रहेगा। तो उसे हम कहते हैं कि पूर्वजों द्वारा हमें मिली हुई उत्तराधिकार के रूप में यह मिली हुई एक संपत्ति के समान ही है। सातवीं बाबत है कि कहावत में गागर में सागर या बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण होता है। कहावत एक ऐसी बाबत है कि एक छोटी सी गागर में पूरे सागर को भर देना, या छोटे से बिंदु में पूरे सिंधु यानी कि समुद्र को भर देना। एक छोटी सी 5-6 शब्दों या थोड़े ज़्यादा शब्दों से बनी हुई एक कहावत, एक ही लाइन में होती है, लेकिन उस कहावत में समग्र घटना का हमें परिचय मिलता है। जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत छोटी सी है, लेकिन उस छोटी सी कहावत में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। जैसे कि अपने गुण सामने वाले को दर्शाना, मैं ये कर सकता हूँ, वे कर सकता, जब मौका मिलता है तब वह कोई भी बहाना बना देता है और वहाँ से निकल जाता है। तो इस छोटी सी बात का बड़ी घटना के साथ संबंध होता है। तो इसे हम कह सकते हैं गागर में सागर या बिंदु में सिंधु, यानी कि छोटी सी कहावत का संबंध बड़ी घटना के साथ हो सकता है। हमने इंसानों ने जन्म लिया, भगवान ने हमें जन्म दिया, तो मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों के लिए जिए, दूसरों को किसी ना किसी रूप में काम आए, धन से काम आए, मन से काम आए, किसी भी प्रकार से कर्म करके काम आए। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ जन्म लेते हैं, किसी को कोई मदद नहीं करते, या कोई भी लोगों के वह कोई भी काम नहीं आता। तो ऐसे लोगों के लिए एक कहावत हमें दी गई है कि अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, यानी कि उस इंसान में और कुत्ते में कोई भी तफावत नहीं है। कुत्ता भी अपना पेट तो भर लेता, हम भी अपना ही पेट भरे, तो वह जीवन कोई जीवन नहीं है। भगवान ने हमें जन्म दिया है, तो हमें चाहिए कि हम दूसरों को के लिए कुछ मददरूप साबित हो। तो इसके बाद 8वीं जो महत्व की बात है वह है कि कहावत का प्रयोग करने से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट और प्रभावशाली हो जाता है। जैसे कि हमने मुहावरे में भी देखा कि ऐसे ही सामान्य बातें लिखते रहते हैं तो वह आकर्षक नहीं लगता। भाषा में कुछ नयापन लाएं, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों से वह भाषा में 4 चांद लग जाते हैं। तो उसी तरह कहावत का प्रयोग करने से भाषा एकदम उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, भाषा स्पष्ट होने लगती है और पूर्ण वह हमें दिखाई देती है और दूसरों को वह प्रभावशाली भी लगती है। तो यह कहावत की मुख्य बातें हमने ध्यान में ली कि भाई कहावत का किसी न किसी घटना से संबंध है। कहावत को हम लोकों में प्रचलित उक्ति यानी लोकोक्ति भी कह सकते हैं। एक कहा हुआ कथन दूसरी ऐसी ही घटना घटती है, उसके ऊपर दोहराया जाता है तो उसे भी हम कहावत कह सकते हैं। कहावत में बहुत सारी बातें भी हमें ध्यान में लेनी चाहिए, यानी कि बिंदु में सिंधु। कहावत एक छोटी होती है लेकिन उसकी बड़ी घटना के साथ कोई ना कोई संबंध होता है। इसके बाद हमने मुख्य बातें देख ली कि भाई कहावत लिखते समय, बोलते समय कहावत कहाँ से आती है, उसका संबंध किसके साथ होता है, यह सब बातें हमने जान ली। उसके बाद प्रमुख कहावतें हमारी कक्षा 9 की हिंदी की टेक्स्ट बुक में दी गई है कहावतें। उसमें प्रमुख कहावतें, वैसे तो कहावत बहुत सारी है लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट कहावतें इसमें हमें दी गई है। उसमें से पहली है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, जिसका अर्थ है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। जो
शासक है, जो शासन करता है उसे शासक कहते हैं, उसमें बुद्धि न हो तो प्रजा में भी बुद्धि नहीं आएगी, यानी कि सभी जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देगा। तो इस कथन के पीछे भी एक घटना है कि एक साधु और दो चेले एक गांव में, एक नगरी में जाते हैं। वहां जाके सब चीज़ों का भाव पूछते हैं, सब चीज़ों की कीमत पूछते हैं। तो सब लोग बताते हैं कि भाजी खरीदो तो भी 1 टके शेर, यानी कि उस समय का एक माप होता था शेर। तो 1 रुपये की कोई भी शेर तमे शाक भाजी है वो खरीद सकते हो, या मिठाई खरीदो तो भी 1 टके की शेर, यानी कि उस प्रजा में भी वह कुछ अज्ञानता थी। राजा अज्ञानी होगा तो प्रजा भी अज्ञानी ही होगी। तो इस घटना के ऊपर से यह कहावत हम बार बार कहीं ना कहीं बोलते ही रहते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खा जाए, यानी अयोग्य शासक के होने से पूरे समग्र राज्य में या वह जहाँ भी शासन करता है वहाँ कुप्रशासन ही दिखाई देता है। दूसरी कहावत है अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी कि एक अंधी औरत है, वो चक्की में आटा पीसती रहती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो जो कुछ भी आटा पीसती है वो साइड में गिरता है, लेकिन कुत्ता आके वह खा जाता है, उसे पता नहीं चलता। यानी कि काम करे कोई और फल कोई और खाए। वो अंधी अपने लिए आटा पीसती है लेकिन कोई दूसरा आके उस आटे को खा जाता है। यानी कि समझो कि बाप की कमाई बेटा खाता है, बाप कड़ी मेहनत करके आजीवन वह पैसा कमाता है, धन दौलत कमाता है, लेकिन बेटा है उस पैसे को उड़ाता ही रहता है। उसके लिए यह कहावत हम कह सकते हैं कि अंधी पीसे कुत्ता खाए। तीसरी कहावत है एक पंथ दो काज, एक ही साधन से हम 2 काम कर सकते हैं। कोई भी एक साधन है उसका हम अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ भी यह कहावत प्रयुक्त की जाती है, एक पंथ 2 काज। चौथी कहावत है आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी वह आँख का अंधा है लेकिन उसका नाम क्या है? नयन सुख। कभी नयनों का सुख उसे मिला ही नहीं, फिर भी उसका नाम है नयन सुख, यानी कि गुणों के विरुद्ध उसका नाम होना। गुण है आँख का अंधा और नाम है उसका नयन सुख। जिसको कभी दृष्टि का सुख मिला नहीं, जो कभी देख नहीं सकता, उसका नाम नयन सुख है। कई बार हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम जो भी होता है उसमें उस प्रकार का गुण होता ही नहीं, उसके लिए हम यह कहावत प्रयुक्त कर सकते हैं कि आँख का अंधा नाम नयन सुख। 5वीं कहावत है कंगाली में आटा गीला, यानी कि मुसीबत में एक और मुसीबत का आना। वैसे तो मुसीबतें कम नहीं होती, लेकिन एक मुसीबत के ऊपर दूसरी मुसीबत का आ जाना, उसे कहते हैं हम कंगाली में आटा गिना। कंगाली यानी गरीबी, घर में कुछ ना हो, थोड़ा सा ही आटा हो, आटा गूंदने बैठते हो, उसमें ज़्यादा पानी गिर जाए, पूरा आटा गीला हो जाता है। यानी कि खाने के लिए कुछ था नहीं, जो कुछ भी था वह भी व्यर्थ, वह भी हमारे हाथ से चला गया। उसे हम कह सकते हैं कि कंगाली में आटा गीला। हम अभी देख सकते हैं कि एक तो कुछ भी कमाई का कोई भी इनकम का कोई स्रोत नहीं था और उसके ऊपर ये बीमारी आ गई या एक वैश्विक महामारी आ गई, तो हम यहाँ भी यही कहावत ले सकते हैं कि कंगाली में आटा गीला। इसके बाद जो कहावत है जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यानी कि जिसके ऊपर भगवान का साइया यानी भगवान, जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुजराती में पण आपणे बोलीए छीए कि राम राखे ने कोण चाखे, कि जेनी साथे भगवान राम छे, जेनी साथे ईश्वरनो हाथ छे, उपरवाळो जेनी साथे ज छे, एनुं कोई कंई बगाड़ी सके नहीं। त्यारबाद 7મી એટલે કે हाथ कंगन को आरसी किया, यह कहावत हम सुनते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को पारसी किया, यानी कि हाथ में कंगन पहना है उसे आरसी, आरसी मतलब आईना, आईने की ज़रूरत नहीं, हाथ में कंगन है वह दिख ही रहा है कि भाई मैंने हाथ में कंगन पहना है। आईने के सामने नहीं देखना पड़ता कि मैंने कंगन पहना है क्या नहीं। तो इसका अर्थ हम ले सकते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। एक क्लास में 30 विद्यार्थी बैठे हैं तो
कोई अगर कहे कि एक बोलता है 30 है, एक बोलता है 25 है, तो हम वहाँ कह सकते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी चल के गिन लेते हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह भी एक कहावत है कि प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसके बाद वाली कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी हृदय आपका अगर पवित्र हो, हृदय में पवित्रता हो, तो चारों धाम की या तीर्थ धाम की यात्रा करना जरूरी नहीं बनता। कि अगर हमारा मन चंगा है, मन अच्छा है, मन पवित्र है, तो कठौती यानी कि छोटे से पात्र में पानी भर लो तो वह भी गंगा के समान ही पवित्र बन जाता है। अगर मन मेला हो और गंगा में डुबकी के ऊपर डुबकी लगाई जाए फिर भी वह व्यर्थ होगा। अगर हमारा मन शुद्ध है, हमारी आत्मा शुद्ध है, तो कठौती में ही गंगा है। और यह तो 8 कहावतें ली। इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, कि पछतावा करने से कोई लाभ नहीं। जब समय होता है उस वक्त हम कोई कार्य नहीं करते, फिर बीता हुआ समय वापस नहीं आता। एक बार वो समय चला गया, एक बार वो टाइम चला गया, फिर वह बार बार नहीं आता या वापस वह नहीं आता। तो हम उस समय पर कोई कार्य नहीं करते, वह समय चला जाता, फिर हम रोते हैं, पछताते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। जब खेतों में धान उगते हैं उस समय चिड़िया आती है उसे खाने के लिए, हम बार बार उसे उड़ाएंगे नहीं, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, और फिर जब वह फसल काटते हैं, वह धान काटते, तब हमें पता चलता है कि चिड़िया ने सारा धान खा लिया, सारे जो दाने थे वह चुग गई। फिर हम सिर पकड़ के रोएंगे, फिर भी उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो उस समय उस जगह पर हम यह कहावत प्रयुक्त कर सकते हैं कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक और है कि एक ऐसी ही कहावत है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़े, यानी कि कोई व्यक्ति होता है जो उसे हम कहते हैं मुंह फट। सामने कोई भी हो, सामने वाले को दुख लगेगा या नहीं, सामने वाले पर मेरी बातों का क्या असर होगा या नहीं, कुछ भी सोचे समझे बिना कुछ भी बोल डालते हैं, उसे हम मुंह फट स्वभाव कहते हैं। उसके लिए यह कहावत होती है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो गुस्से वाला था ही, ऊपर से वह और गुस्से वाला हो गया। इसके बाद एक और कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि कोई एक बिल्ली है, वह कहीं कोई और जगह से गुस्से में आती है, गुस्सा होती है और वहाँ गुस्सा वह नहीं निकाल सकती, इसलिए आकर खंभे को वह अपने नाखूनों से नोचती रहती है। यानी कि किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालना। कोई एम्प्लॉय को उसका बॉस अगर डांटता है तो वो एम्प्लॉय को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन उस अपने बॉस को वह कुछ भी नहीं कह सकता। वही एम्प्लॉय अगर घर जाता है, उसके बच्चे कुछ शरारत करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वह अपने बच्चे को डांट डालता है, यानी कि अपने बॉस का गुस्सा वह बच्चों पर निकालता है। उस व्यक्ति के लिए हम यह कहावत प्रयोग कर सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी किसी और का गुस्सा या कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालना। उसके बाद एक और कहावत है कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। चांदनी होती है वह 4 दिनों की होती है, क्योंकि जो पूनम फुल मून आता है उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद फिर अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो जीवन में कुछ सुख है, थोड़े समय के लिए आता है, बाद में वह सुख भी चला जाता है, दुख आता है तो दुख भी चला जाता है। तो कोई अच्छी बात आए, कोई सुख आए तो हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ज़्यादा खुश होंगे तो कोई भी हमारे लिए बोलेगा कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसी ही बहुत सारी कहावतें हैं जो हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में जो भी पद्य या गद्य आएंगे उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कहावतें आती रहेंगी, जो हम आगे के लेक्चर में ऐसे पढ़ते रहेंगे। तो कहावत का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। तीसरे लेक्चर में हम एक और टॉपिक लेकर मैं आऊँगी, तब तक के लिए वीडियोस देखते रहते।